अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शादनगर असेंबली हल्के के कुंडूर में इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा जलसे में शिरकत करते हुए खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम गरीब तलबा को कॉरपोरेट सतह की तालीम फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मियार की तालीम फराहम करने के लिए इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के मंसूबे तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर एक स्कूल 150 एकड़ अराजी पर तामीर होगा, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स ग्राउंड कायम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि तेलंगाना में महकमे तालीम को मजबूत बनाने के लिए नए तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा को तरक्की देने का अमल भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्कूलों का आगाज़ तुलबा को आला मियार की तालीम फराहम करने के लिए किया जा रहा है। దీన్ని తప్పు పడుతుండు. నేను అడగదలుచుకున్న వారిని ఒక్కటే మాట, అయ్యా నీ ఇష్టం, నువ్వు బీఎస్పీలు ఉంటావా, బీఆర్ఎస్లకు పోతావా, ఏ రాజకీయ పార్టీలు ఉంటావో మాకు అభ్యంతరం లేదు, నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏ రాజకీయ పార్టీల్లో నుండి. కానీ గురుకులాలకు సెక్రటరీగా పనిచేసిన మీరు ఇవాళ ఒక గొప్ప రెసిడెన్షియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ని 25 ఎకరాలల్లా 125 నుంచి 150 కోట్లతోటి మా షాద్నగర్ బిడ్డలకు అందిస్తుంటే మీరెందుకు అభ్యంతరం చెప్తున్నారని నేను అడగదలుచుకున్న మిత్రుడు ప్రవీణ్ కుమార్ను. బీఆర్ఎస్లో చేరంగానే మీరు కూడా వారిలాగా మారినరా? పేదలకు చదువు అందొద్దని మీరు భావిస్తున్నారా? ఏ దొరలు పేదలకు విద్యను దూరం చేసిండ్రో, ఏ దొరలు పేదలకు వైద్యాన్ని దూరం చేసిండ్రో, ఏ దొరలు బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్సీలేమో చెప్పులు కుట్టుకోవాలి, బీసీలేమో చేపలు పట్టుకోవాలి, గొర్రెలు బర్రెలు పెంచుకోవాలి, ఎస్టీలేమో పందులను పెంచుకోవాలని పథకాలు పెట్టిన చంద్రశేఖరరావు పక్కన చేరి ఈరోజు మీరు కూడా మా బలైన వర్గాల సోదరులు బర్రెలు గొర్రెలను పెంచుకోవాలి, చేపలు పట్టుకొని బతకాలనా? మా దళిత సోదరులు చెప్పులు కుట్టుకొని బతకాలనా? మా ఎరకల సోదరులు పందులను పెంచుకొని బతకాలనా? చంద్రశేఖరరావు ఏదైతే చెప్పిండో ఇవాళ నువ్వు అదే మాకు నేర్పించదలుచుకున్నావా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గాని నేను అడుగుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ, కోరి అధికారం ఇచ్చిన చంద్రశేఖరరావు తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులకు ఏమిచ్చిందంటే, మీకు చదివేందుకురా, మీకు హోదా ఎందుకురా, మీరు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు అవుతారా? మీ ముఖానికి బర్రెలు కాసుకోండి, గొర్రెలు కాసుకోండి, చేపలు పట్టుకొని బతుకుండ్రి, గౌడన్నలు ఈదులు గీసుకొని బతకండి అని ఆయన చదువు నేర్పుతున్నాడు చంద్రశేఖరరావు. ఎన్నిసార్లు అన్నాడు మీరు చూసారు కదా, పేదోళ్లకు గొర్రెలు బర్రెలు ఇవ్వాలని. ఎవడొద్దన్నాడా? చదువుకున్నాడు. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत जात पात और मजहब से बालातर होकर सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। वो खम्मम जिले के लक्ष्मीपुर में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल के संग बुनियाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात के लिए मियारी तालीम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत
तालीम और सेहत को इंतहाई अहमियत दे रही है और तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है। भट्टी ने कहा कि तुलबा को दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए काबिल बनाया जा रहा है। इस साल इंटीग्रेटेड गुरुकुल स्कूल पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अज़्म और नेक नियति से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 6.80 కోట్లతో రోడ్డు శాంక్షన్ చేయించి దీని పక్క నుంచి తీసుకొని వెళ్తున్నాం. లక్ష్మీపురం టు పాతర్లపాడు అంటే మీరు ఎటు చూసినా ఎక్కడ నుంచి చూసినా అన్ని రోడ్లు ఈ పాఠశాల దగ్గరకు వచ్చి ఆగే విధంగా ఈ పాఠశాల పక్క నుంచి వెళ్ళే విధంగా ముందు నుంచే ప్రణాళికలు తయారు చేసి శాంక్షన్ చేసి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కోటయ్య గారు ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజాప్రభుత్వం పీపుల్స్ గవర్నమెంట్ మాకు ఎటువంటి భేషజాలు లేవు, శశభిషలు అంతకంటే లేవు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కాదు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఈ ప్రజలకి మంచి చేయడానికి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు చెప్తే తూచా తప్పకుండా అది మంచి జరుగుతుంది అనుకుంటే తప్పనిసరిగా వాటిని అమలు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మాటిస్తా ఉన్నాను. ఏ విషయమైనా మీరు దృష్టికి తీసుకొని రావచ్చు. అంతిమంగా మనకు కావాల్సింది పాలకులుగా ప్రజాప్రతినిధులుగా ఈ ప్రాంత వాసుల అభివృద్ధి కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఇది ఒక తలమానికంగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. మీరు అన్నట్టు మీ చిన్నతనంలో 80 సంవత్సరాలు పైబడి అని చెప్తా ఉన్నారు. రోడ్లు లేకుండా అడవిలో నడుచుకుంటూ పోయారు. నేను కూడా ఆ అనుభవంలోంచి మీరు చాలా కలలు కన్నా. वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा गया, जिसके ज़रिए हुकूमत रियासत में तालीम के फ़रोग़ और मियारी तालीम की सरबराही में अपने असली मकासद के लिए काम कर रही है। वज़ीर मौसूफ श्रीनिवास रेड्डी ने जुमे को खम्मम रूरल मंडल पुन्निकाल में इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने 657 करोड़ रुपए से अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में 3 माह में बुनियादी सहूलतें फराहम की। वज़ीर ने कहा कि पिछली हुकूमत ने 10 सालों में कुछ नहीं किया और वो हर महाज में नाकाम रही। 119 నియోజకవర్గాలలో మొదటి విడతగా ఈనాడు మనం 28 ప్లేసుల్లో ఈనాడు శంకుస్థాపన చేసుకుంటున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 128 ఈరోజు 28 కాంప్లెక్స్లు కట్టుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో 119 మందికి 119 నియోజకవర్గాల్లో ఈ అద్భుతమైన కాంప్లెక్స్లు కట్టబోతున్నాం, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్. దీన్ని ప్రభుత్వం ఈనాడు ఆర్థికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉంది. ఆనాటి ప్రభుత్వం సుమారు 7,19,000 కోట్లు అప్పు చేసింది. ఈ 7,19,000 కోట్లు కూడా మన ప్రతి ఒక్క తల మీద, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మీద సుమారు 1,80,000 రూపాయల అప్పు మన నెత్తి మీద ఉంది. అయినా కూడా రాష్ట్ర పరిస్థితి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నా 1వ తారీఖు నాడే ఉద్యోగస్తులకి జీతాలు ఇస్తూ ఏదైతే విద్యతో పాటు వారికి అభిరుచులున్న కార్యక్రమాలలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా యువతని ప్రోత్సహించాలని ఈ యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీకి చైర్మన్ గా ఆనంద మహేంద్ర గారిని ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఒక బెంచ్ మార్క్ కి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बहुत जल्द नामजद ओहदों को पुर किया जाएगा और 1 महीने के अंदर पीसीसी की नई कमेटी तश्कील दी जाएगी। गांधी भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मजलिस के साथ कांग्रेस का कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है, सिर्फ मजलिस के साथ दोस्ती है। उन्होंने नामपल्ली असेंबली हल्के में हालिया दिनों पेश आए वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि फिरोज खान के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, गलती चाहे हमारे लोग करें या कोई और, कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने मियारी तालीम फराहम करने के मकसद के तहत इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। ये एक शानदार प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि दशहरे तक नामजद ओहदे ऐलान करने का मंसूबा था, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की वजह से दशहरे तक नामजद ओहदों पर तकर्रुरात मुमकिन नहीं हो सके। 1 महीने के अंदर वर्किंग कमेटी तश्कील देने जा रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो अब मुकम्मल तौर पर मूसी की सफाई पर है। मूसा नदी पर DPR सफाई के लिए आना बाकी है। मूसा मुतासरीन में से 50% ने इस प्रोग्राम के लिए रजामंदी जाहिर की है।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि आर्टिकल 370 के मामले में कोई नजरसानी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 साल दौरे हुकूमत में भारत आलमी सतह पर मजबूत हुआ है। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में ही मूसा नदी के अतराफ के इलाकों में तामीरात सामने आए। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत उन लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करे जो 40 साल से वहाँ रिहाइश पजीर हैं। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मूसा नदी के अतराफ अमीर लोग नहीं हैं। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों के घरों को गिराने से पहले उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम गंदे नालों का निज़ाम मूसा नदी में ही मिलता है, इसलिए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन होगा। हुकूमत का कहना है कि वो 1,50,000 करोड़ के साथ नदी को खूबसूरत करेगी, लेकिन वो ये फंड्स कहाँ से जमा करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा की जानिब से जल्दबाजी के फैसले लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आम लोगों के घरों को गिराया गया तो बैंक के कर्जे कौन अदा करेगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स की इजराई से मुताल्लिक ऐलान किया है। ग्रुप 3 के इम्तिहानात जो 17 और 18 नवंबर को होने वाले हैं, उनके हॉल टिकट 10 नवंबर से जारी किए जाएंगे। ग्रुप 3 के इम्तिहानात में कुल 3 पर्चे होंगे। 17 नवंबर की सुबह जनरल स्टडीज़ का इम्तिहान होगा। दोपहर के वक्त हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का इम्तिहान लिया जाएगा। 18 नवंबर को इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से मुताल्लिक इम्तिहान शीट कमीशन देगा। इस इम्तिहान के लिए एक मॉडल इसका वेबसाइट पर रखा गया है। इसी तरह हॉल टिकट्स के हवाले से ज़रूरी एहतियाती तदाबीर भी TSPSC ने जारी की हैं। याद रहे कि 30 दिसंबर 2022 को ग्रुप 3 की 13,375 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तेलंगाना हुकूमत एक और इंतखाबी वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस के 6 जमानतों में शामिल गरीबों को इंदिरम्मा मकानात अलॉट करने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहम फैसला लिया है। इंदिरम्मा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान की शिनाख्त के लिए कमेटियां कायम करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने इस खुसूस में जुमे को एक जियो जारी किया। जियो के मुताबिक इन कमेटियों को पंचायतों और म्यूनसिपल वार्ड सतह पर कायम किया जाएगा। गांव की सतह पर सरपंच या स्पेशल ऑफिसर कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि म्यूनसिपल सतह पर काउंसलर या कॉर्पोरेटर चेयरमैन होंगे। इंदिरम्मा हाउस कमेटी के कन्वीनर के तौर पर पंचायत सेक्रेटरी या वार्ड ऑफिसर होंगे। कमेटी में 2 SC/ST अरकान और 3 मकामी अफराद भी शामिल होंगे। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने पुलिस के DSP की हैसियत से आज DGP ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा ले लिया। उन्होंने रियासती DGP जितेंद्र से मुलाकात करते हुए ज्वाइनिंग लेटर हवाले किया। इस मौके पर सिराज ने रियासती हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को ज़मीन और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस साल अगस्त में जुबली हिल्स रोड नंबर 78 पर 600 गज ज़मीन सिराज को अलॉट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी किए थे। हाल ही में सिराज को DSP की पोस्ट भी दी गई थी। दशहरे के जश्न के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद शहर तकरीबन खाली हो चुका है, क्योंकि शहरी अपने आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। शहर के कई सड़कें गैर मामूली तौर पर खामोश हैं, जिससे कर्फ्यू जैसा माहौल नज़र आ रहा है। शहरियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी के नतीजे में विजयवाड़ा हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। जुम्मे के रोज़ केतापल्ली मंडल ज़िले नलगुंडा के करीब खासे तौर पर कुर्लपा गांव के इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। टोल गेट अमले ने विजयवाड़ा की तरफ जाने वाले रास्तों पर 6 टोल बूथ्स कायम किए हैं ताकि इजाफी ट्रैफिक को संभाला जा सके। एक 7वां टोल बूथ हंगामी खिदमात बशमूल VIPs और एम्बुलेंसेस के लिए मखसूस किया गया ताकि आसानी से गुजर हो सके। तवील दशहरे की छुट्टियों के बायस हैदराबाद से अपने आबाई इलाकों की तरफ रवानगी में इजाफा मुतवक्को है। टोल गेट के हुक्काम ने इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 टोल बूथ्स खोले जा सकते हैं ताकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। हैदराबाद के नुमाइश मैदान नामपल्ली में नवरात्रि की तकरीबात के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में नस्ब मूर्ति को नुकसान पहुंचा हुआ पाया गया। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आया ये किसी शरपसंद की जानबूझकर की गई हरकत है। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद ने पंडाल में चंदे के बॉक्स को छेड़ा, जिसके नतीजे में देवी दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। पंडाल के मुंतजमीन ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मौके का दौरा किया। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने डोनेशन बॉक्स को हटाया, जिसकी वजह से मूर्ति का हाथ टूटकर गिर गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। हाथ टूट गया।
मूर्ति को पटके जैसा है और तो झुकाए तो भी दिखता ना బాత్రూమ్ జాగే పానీ నాకే ఏమైనా తప్పు జరిగితే ఎమ్మరుండి పట్టుకొని అది తీసుకోపోతారు బాధ్యత వచ్చేస్తారు. साबिक वजीर टी हरीश राव ने मरकजी हुकूमत की आंध्र प्रदेश को गोदावरी पुष्करालू के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया, जबकि तेलंगाना को किसी भी फंड से महरूम रखा गया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया कि तेलंगाना में उनकी नुमाइंदगी के बावजूद कोई माली इमदाद हासिल नहीं की जा सकी। हरीश राव ने निशानदेही की कि तेलंगाना में बीजेपी के 8 एमपीज और 2 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन मरकज से रियासत को 1 पैसा भी नहीं मिला। इसके बरक्स आंध्र प्रदेश को खुसूसी फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया गया। एक ट्वीट में हरीश राव ने कहा कि अगर बीआरएस की लोकसभा में ज़्यादा मजबूत मौजूदगी होती तो ऐसी नाइंसाफ़ी को कभी बर्दाश्त न किया जाता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरकज़ की तरफ से तेलंगाना को नज़रअंदाज करना, ख़ास तौर पर अहम फंडिंग के मामलात में नाकाबिल कबूल है। कामारेड्डी जिले के जुक्कल हलके में रहने वाले पिछले 5 दिनों से पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग त्योहार के मौके पर भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मिशन भागीरथ स्कीम के तहत पानी की सप्लाई में खलल के बाइस मकामी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टैंकरों के पास घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ख़ास तौर पर ख़वातीन को इस बहरान से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जो अक्सर दूर दराज मकामात से पानी लाने में काफ़ी वक्त सर्फ करती है। त्योहार के मौके पर कुछ ख़वातीन को अपने अहले खाना और मेहमानों को छोड़कर टैंकरों की कतार में खड़ा होना पड़ा, जिससे इस सूरत हाल की संगीनी जाहिर होती है। लोगों का कहना है कि ऐसे मसाइल पिछली हुकूमत के दौर में पेश नहीं आते थे जब पानी दस्तयाब था। वो मौजूदा हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकाला जाए और पीने के पानी की फराहमी को बहाल किया जाए। मारूफ किन्नरी फनकार दर्शनम मुगलैया की जायदाद की दीवार नामालूम अफराद ने रातों रात मिसमार कर दी। ये ज़मीन उन्हें हुकूमत की तरफ से अलॉट की गई थी और उन्होंने वहां एक बाउंड्री वॉल बना दी थी। दीवार की मिसमारी से मुगलैया बहुत परेशान है। मुगलैया जो अपने कन्नेरी बजाने की महारत के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हुकूमत से इंसाफ की अपील की और मुतालबा किया कि इस गैर मुनसिफाना अमल में फौरी तौर पर मुदाखलत की जाए। उन्होंने इस वाक़े पर मायूसी का इजहार किया और हुक्काम से दरख्वास्त की कि वो इस मामले की तहकीकात करें और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करें। निर्मल ज़िले के कोबीर मंडल के नगुआ गांव में मिशन भागीरथ के एक पानी के टैंक में एक बंदर की लाश पाई गई, जिसने मकामी लोगों में तशवीश पैदा कर दी। पिछले हफ्ते से टैंक से पानी गांव को सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन पानी में बदबू आने पर शक हुआ। टैंक की जांच के दौरान गांव वालों ने बंदर की सड़ी हुई लाश दरियाफ्त की और फौरी तौर पर हुक्काम को इस बात की इत्तला दी। हुक्काम ने फौरी तौर पर लाश को हटाया और टैंक की सफाई की। ताहम गांव वालों ने बरहमी का इजहार किया। हुक्काम पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक आलूदा पानी फराहम किया और एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई। ये वाक़या इसी साल अप्रैल में पेश आए एक दूसरे वाक़े से मुशाबहत रखता है, जब नलगुंडा ज़िले के नागार्जुना सागर में एक पानी के टैंक में बंदरों की लाशें पाई गई थी। वहाँ तकरीबन 30 बंदरों की लाशें दरियाफ्त की गई थी और लोगों को 10 दिनों तक आलूदा पानी फराहम किया गया था। वरंगल जिले में बदकम्मा की तकरीबात के बाद 2 नौजवान एक मोटरसाइकिल हादसे में हलाक हो गए। हादसा रियापरती मंडल के किस्टापुरम गांव में पेश आया। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरीन की शिनाख्त राजू और अन्वेश के तौर पर हुई। इनकी उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान हैं। ये दोनों अपने दोस्त के घर से वापस हो रहे थे। जुमे की इब्तदाई सुबह जब वो तुदिला बांडा तांडे के करीब पहुंचे तो उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। नलगुंडा जिले के चिटियाल में एक सड़क हादसा पेश आया, जिससे कौमी शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम हो गई। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार लॉरी ने डिवाइडर
से टकरा गई। इसके नतीजे में लॉरी पर मौजूद डीजल टैंकर फटकर बड़ी आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, जबकि लॉरी मुकम्मल तौर पर जल गई। इस वाक़े की वजह से हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी तादाद में गाड़ियां रुक गईं। वरंगल जिले के नेकोंडा मंडल के अलंगपेट गांव में बदकम्मा की तकरीबात के लिए लगाए गए बरखी कमकमों के कनेक्शन से एक 45 साला शख्स याकया बरखी रौ से जाम बहक हो गया। गवाहों के मुताबिक हादसे के वक्त याकया एक छोटे बच्चे को उठाए हुए था, जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। गांव वालों ने बताया कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब याकया ने उन तारों को गलती से छू लिया जो कि तकरीबात के दौरान लगाए गए बरखी कमकमों से ये तार जुड़े हुए थे। ये वाकया एक कार के डैश कैम में कैद हो गया। हुक्काम को इस बात की इत्तला दी गई और ये जानने के लिए तहकीकात जारी है कि आया किसी की लापरवाही से यह हादसा पेश आया। मेदक पुलिस ने एक बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार कर लिया जो जिले भर के मंदिरों में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। एसपी उदय कुमार रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि गैंग पिछले माह नग्गीरेड्डीपेटा, बोरेली, घनपुर, चिन्ना शंकरमेट और चेगुंटा के मंदिरों में चोरी की वारदातों का जिम्मेदार था। पुलिस ने इन चोरियों की तहकीकात तेज कर दी थी और गाड़ियों की चेकिंग के दौरान गावलापल्ली चिन्ना शंकरमेट मंडल के करीब मुलजिमीन को पकड़ा गया। मुलजिमीन टाटा कार में फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारशुदा अफराद की शिनाख्त असलम, शेख इलियास और शेख समीर के तौर पर की गई, जो सब नांदेड़, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने गैंग से 3 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 5.5 लाख रुपए मालियत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ लाओस के दारुल हुकूमत वियतनाम में ईस्ट एशिया समिट में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत हमेशा आसियान ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की हिमायत करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड ताउन के मरकज़ में है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में जारी मुख्तलिफ जंगों का सबसे ज़्यादा असर ग्लोबल साउथ के ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में अमन बहाल करना बहुत ज़रूरी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए वजारत दाखिला ने आज हिज़्बुत तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तंजीम दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस है, बशमूल नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने, जिससे हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को संगीन खतरा लाहक है। मोदी हुकूमत दहशतगर्दी की ताकतों से आहनी मुट्ठी से निपट कर हिंदुस्तान को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। एक गज़ट नोटिफिकेशन में वजारत दाखिला ने हिज़्बुत तहरीर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, महफूज ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए और नौजवानों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की तरगीब देने के लिए दावा मीटिंग्स के जरिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। केरला असेंबली ने मरकजी हुकूमत की तरफ से रामनाथ कोविंद कमेटी की एक मुल्क एक चुनाव के लिए की गई सिफारिशात पर
एहतजाज दर्ज करवाया और ऐवान में इसके खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई। रियासत के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की तबीयत नासाज होने की वजह से रियासती मुखल्लना उमूर के वजीर MB राजेश ने असम्बली के तरीक़ेकार के कायदे 118 के तहत तहरीक पेश की और वन नेशन वन इलेक्शन को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया। वाज़ेह है कि 140 रुकनी असम्बली में ना तो बीजेपी और ना ही बीजेपी की क़यादत वाली NDA इत्तेहाद की किसी पार्टी के एक भी रुकन असम्बली है, इसीलिए पहले से यकीनी था कि इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमे के रोज़ कहा कि असम्बली इलेक्शन का इनेकाद और उसमें कामयाबी हमारी जद्दोजहद की पहली सीढ़ी थी और मुस्तक़बिल में हमें मज़ीद चैलेंजों का सामना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे सामने जो चैलेंज है वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करवाना है ताकि आने वाली अवामी हुकूमत बग़ैर किसी रुकावट के अवाम को हर सतह पर राहत पहुँचा सके। मैं समझता हूँ हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनसे वक्त मांगेंगे मेरे ख्याल से कल जाएंगे लेटर ऑफ सपोर्ट लेके और उनसे कहेंगे कि अब हमें डेट दीजिए कि हम लोग हुकूमत बना सके, स्वेरिंग इन सेरेमनी हो, उसके लिए उनसे तारीख मिले, फिर हमारे जो साथी आने वाले हैं उनको हम इन्फॉर्म करें तो वो यहाँ आ सके, उसमें शामिल हो सके। फारूक साहब, डोडा की सीट से आपका भी समर्थन मिला है, आप पार्टी का भी समर्थन मिला है, वो जो कैंडिडेट वहाँ से जीत के आए हैं वो भी आपको समर्थन दे रहे हैं? दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियासत को अगर हमने आगे ले जाना है तो हमने नफरतों को दूर करना। अगर हम नफरतों को दूर नहीं कर सकेंगे तो हम इस रियासत को चला नहीं सकेंगे। हमने जम्मू के लोगों के दिल जीतने हैं, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। जो उनमें झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उनकी गलती नहीं है, उन्हें यह सुनाया गया कि साहब या पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी या आतंकवाद शुरू हो जाएगा, आप लोग खतरे में हैं। मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी ज़मीनें चली गई, उनकी नौकरियां चली गई, उनका सब कुछ गायब हो गया, मगर वो उनके प्रोपेगेंडा में आ गए। हम उनके दिलों से ये प्रोपेगेंडा निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब खुशहाली से रहें। इस रियासत के बड़े मुश्किलात हैं और उन मुश्किलात का हमने मुकाबला करना है, इन्होंने भी करना है, हमने भी करना है, तभी ये रियासत आगे चलेगी। और इसमें हमें दिल्ली की हुकूमत का बहुत ज़रूरी ताउन चाहिए कि यहाँ स्टेट रोड रिस्टोर हो और हुकूमत काम कर सके। आखिरकार ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। डॉक्टर साहब, अगर ताज चमकेगा नहीं तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? फारूक साहब, ऐसे खदशात जताए जा रहे हैं कि जो 2019 से पहले असेंबली थी काफ़ी पावरफुल और स्ट्रांग असेंबली थी यहाँ पे, और अब की जो असेंबली आएगी उतना पावर्स नहीं रहेंगे और शायद सरकार उस तरह से लोगों के काम नहीं कर पाएगी। ये लोगों में एक थोड़ा सा देखिए हम में भी नोएल टाटा को टाटा सन्स के प्रमोटर टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन रतन टाटा के इंतकाल के बाद जानशीन के इंतखाब के लिए मुनक्किदा टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया। बोर्ड ने नोएल टाटा को इत्तिफाक़ी राय से टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन मुंतखब किया है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो फिलहाल टाटा स्टील और वोल्टा समेत कई लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में शामिल हैं। इतलात के मुताबिक महली मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट का मुस्तकिल ट्रस्टी मुकर्रर किया जा सकता है। महली टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन आजहानी सैरस मिस्त्री के रिश्ते के भाई हैं। नोएल टाटा को अपनी लो प्रोफाइल क़यादत के लिए जाना जाता है। गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी 369वें रोज़ भी जारी रही। हिलाल अहमर के स्कूल पर इसराइली फ़िज़ाइया के ताज़ा हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तिब्बी हमले के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शुमाली गाज़ा में तीनों अस्पताल खाली करने का हुक्म देते हुए मरीज़ों की ज़िंदगियों को ख़तरे से दोचार कर दिया। इसराइली फ़िज़ाइया ने जुमेरात को शुमाली गाज़ा के शहर देरुल बला में कायम हिलाल अहमर के स्कूल को निशाना बनाया, जहाँ ख़वातीन और बच्चों समेत बेघर अफराद की बड़ी तादाद पनाह गज़ीन थी। इसराइल ने लेबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत में एक इमारत पर हवाई हमले किए। लेबनान के वजारत सेहत ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 लोग ज़ख्मी हुए। इसराइल ने हमले पर फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन और कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाफिक सफ़ा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहे। ये सेंट्रल बैरूत में इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।